Good morning, students. Now, in moral science, we are going to start chapter 8 Learn to Forgive. Value taught here is forgiveness, माफ़ करना. किसी को किसी की गलती पे माफ़ कर देना या क्षमा करना. The golden words is the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. It is given by Rabindranath Tagore. That means कि जो कमज़ोर लोग हैं वो किसी को क्षमा नहीं कर सकते. क्षमा करना स्ट्रांग लोगों के ही, मजबूत लोगों के ही का ही काम है. वो लोग ही ये एटीट्यूड रख सकते हैं. Children, you must have heard the saying, to err is human, to forgive divine. That means that committing an error is human tendency, while forgiving somebody's mistakes is a godlike quality. That means कि गलती करना ह्यूमन नेचर में है. वी आर ह्यूमन बीइंग. हम लोगों से गलती हो ही सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है. लेकिन फॉरगिव करना, क्षमा करना, माफ़ करना, ये भगवान के जैसी क्वालिटी है जो भगवान कर सकते हैं, स्ट्रांग लोग कर सकते हैं, वही इसे कर सकते हैं. बाकी दूसरे लोग जो वीक हैं वो इसे नहीं कर सकते. So the very nature of human is to feel angry and become revengeful towards a person who has done something wrong. But forgiveness is the act of overcoming the feeling of revenge or punishment for the person who has done a wrong action. Human get angry and start taking revenge to the person who has done something wrong. तुम लोग भी ऐसा करती होगी कि तुरंत गुस्सा हो जाना या फिर किसी से बदला लेना. अगर कोई गलत काम किया तो उससे बदला लेना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. बट द एक्ट ऑफ ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ रिवेंज, ये बदला लेने की भावना से ऊपर उठना, ये फॉरगिवनेस ही है. हर बात का या हर गलती का बदला हम लोग नहीं ले सकते हैं और नहीं लेनी चाहिए. वी हैव टू फॉरगिव इट. When you forgive others, grudges and unfriendly feelings go out of your mind. Moreover, forgiveness also gives the person who has done wrong an opportunity to realize his mistake and repeat for the same. So, when we forgive those who have done anything wrong, then it gives them opportunity. ये उनको सुधरने का मौका देता है. टू रियलाइज हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उससे वैसी गलती को दोबारा नहीं करने की कोशिश भी कर सकते हैं. सो फॉरगिवनेस जनरेट्स पॉजिटिव एनर्जी एंड इज़ लाइक अ बून फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. और ये हम लोगों के आपस के रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है. उसके लिए एक वरदान की समान है. हम जिसे माफ़ कर देते हैं वो भी खुद में सोचता है कि अरे ये मेरी गलती पे भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वो और अच्छे नज़रों से हमें देखते हैं. वन स्टोरी इज हियर, द फॉरगिविंग स्वामी जी. शिवाजी वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, India, during the 17th century. He fought firstly with the last Mughal emperor Aurangzeb. He was considered a great warrior, patriot, and administrator of Western India. He was a person of repute. So it is a story story of Shivaji, who was a great king of the present day state of Maharashtra, जिसने औरंगजेब से, मुग़ल एम्परर औरंगजेब से फाइट करके उन्हें हराया था और ग्रेट वॉरियर सिद्ध हुए थे. पैट्रियट, देशभक्त भी वो थे. स्वामी रामदास वॉज द गाइड एंड मेंटर ऑफ शिवाजी. मेंटर मीन्स टीचर, दोज हु गाइड. सो शिवाजी वॉज गाइडेड बाय स्वामी रामदास.
Ramdas. It was because of Swami Ramdas' training and inspiration that Shivaji attained great success in life. Swami Ramdas is considered as one of the most famous saints of ancient India. Once during the summer season, Swamiji was on his way to meet Shivaji. He was with his pupils. Pupils means students. वो अपने स्टूडेंट के साथ समर सीजन में स्वामी रामदास अपने भक्त शिवाजी से मिलने के लिए आ रहे थे. On the way, they decided to take rest at a place so as to satisfy their hunger. Some of Swamiji's pupils entered a farm, broke off a few stalks of sugarcane, and began to suck them. However, when the watchman of the farm arrived, they quickly ran away. The watchman could not catch them. वो लोग रास्ते में अपने भूख को शांत करने के लिए कहीं रुके और वहाँ बगल में फार्म था, तो स्वामी जी के जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग उसमें चले गए और वहाँ से कुछ शुगर केन को तोड़ के ले आए और उससे शुगर केन के जूस को सक करने लगे. उससे उन लोगों ने अपने भूख को मिटाने की कोशिश की. लेकिन तब तक वहाँ जो वॉचमैन है वो देख लिया और उसके पीछे दौड़ा. But they ran away and the watchman could not catch them. At that time, Swami Ramdas was sitting nearby meditating upon God. On seeing him, the watchman thought, it seems that the intruders were the pupils of this monk. He must be the man behind everything. Under this mistaken belief, the watchman beat Swamiji severely and threw him out of the place. Owing to his spirit of equanimity, Swamiji did not utter a word. He just tolerated whatever was done to him. वो वॉचमैन जब वहाँ आया तो सारे लोग जिन्होंने उनका शुगर केन लिया था वो तो भाग चुके थे, लेकिन वो देखा कि वहाँ स्वामी रामदास बैठे हैं और मेडिटेट कर रहे थे. तो वो सोचा कि यही है ये सारे फसाद की जड़. दैट मीन्स ये द मैन बिहाइंड एवरीथिंग. ये जो भी काम किया गया है उसके पीछे इनका ही हाथ है. और इस गलती के लिए वॉचमैन ने उन्हें खूब पीटा और उसे वहाँ से उठा करके फेंक दिया. Owing to his spirit of equanimity, स्वामीजी did not utter a word. उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और उसके जो भी वो किया उसको वो टॉलरेट किए. When Swamiji reached Shivaji's place, Shivaji was surprised to see scars and wounds on his body. जब वो शिवाजी के पैलेस पहुँचे, उनके महल में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि स्वामी रामदास के बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स, वुंड्स, घाव है. Shivaji gathered the fact from the pupils. On Shivaji's order, the watchman was immediately arrested and summoned before him and Swami Ramdas. सारे स्टोरी जानने के बाद उन्होंने वॉचमैन को कॉल किया, बुलाया गया और उसके अरेस्ट किया गया. स्वामी रामदास के पास लाया गया और शिवाजी ने भी उनके बात को सुनना चाहा कि क्या हुआ था. Turning to Swami Ramdas, Shivaji asked, "Well, Guruji, what punishment shall I give to this man?" Swamiji replied, "I myself shall punish him." Swamiji announced his judgment in the following words: "From today, the farm shall be awarded to this watchman. He shall be exempted from all the taxes during his lifetime." तो उन्होंने उन्हें उस वॉचमैन को क्या पनिशमेंट दिया कि आज से इसे अवार्ड दिया जाएगा और आज से ये सारे टैक्स, इसके ऊपर से जितना भी टैक्स है वो सब हटा दिया जाएगा इसके पूरे लाइफ टाइम के लिए. एवरीबडी प्रेजेंट देयर वॉज अमेज्ड. सबको बहुत आश्चर्य हुआ. स्वामी जी नॉट ओनली फॉरगिव द वॉचमैन बट ऑल्सो अवार्डेड हिम. उन्होंने
वॉचमैन को सिर्फ माफ़ी नहीं किया, उसे अवार्ड भी दिया। Though Shivaji was also surprised, he said, "Yes, Guruji, I will do what you have said." After the watchman went away, Shivaji asked Swami Ramdas, "Guruji, did he really deserve forgiveness and reward?" "Yes," replied Swamiji. He added, "He is a loyal servant of yours. It was his duty to protect your place. It was not his mistake. I paid the price of my people's mistake." तो गुरुजी ने क्या कहा? स्वामी रामदास ने कहा कि वो सही में फॉरगिवनेस डिज़र्व करता था, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था, वो लॉयल सर्वेंट था, वो ईमानदार, वफादार, जो भी बोला जाए, लॉयल फेथफुल सर्वेंट था वो। और वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसका ड्यूटी था उस प्लेस को प्रोटेक्ट करना, और उसने वही काम किया। ये उसकी गलती नहीं थी। मैंने अपने पीपल्स, अपने स्टूडेंट्स के कर्मों का फल भोगा है। आई पेड द प्राइस ऑफ माई पीपल्स मिस्टेक। उनकी गलती की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ा। तो उस वॉचमैन की कोई भी गलती नहीं थी। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इट इज़ दैट वी शुड always try to forgive other mistake.